ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ 1699 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਤਰਸ ਕਰਨ, ਆਪ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਵਣਜਾਰਾ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸੀ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਮੁਰਦਾ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕਣੀ। ਇੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਸੁੱਤੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਮਾਨੀ ਮਾਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਛੁਪਾਏ ਛੁਪੇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਇਆ ਡਰੇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਔਰ 5 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ
ਬਨਾਰਸ ਵਿਦਿਆ ਲਈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1699 ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਿਜਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ। ਸੋ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਐਸਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ 80,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪੀ ਛਾ ਗਈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਦੇਵ, ਦਾਸ ਦਾ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਔਰ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੀ, ਜੋ ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੇਰਠ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦਾਸ ਦਾ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਔਰ ਫਿਰ ਭਿੱਜੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਅਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਚੋਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਜੋ ਪੁਰੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੇਮ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਸੀਸ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਚੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ
कोई घटना वापरी है। इस वक्त गुरु के एक होर प्यार वाले भाई मोहकम चंद जी, जो द्वारका दे गुजरात दे प्रदेश के द्वारका इलाके दे रहन वाले सन, उठ खड़े होए, कहने लगे पातशाह दास हाजिर है। उन्होंने नाल भी सेम रिपीट होया। फिर पंजवीं वारी मेरे पातशाह बाहर आए, कहने लगे जे एक होर सीस चाहिए है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬਿਦਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਜੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ एक कौतक वरत्या। वो पंजे शरीर गुरु वाले सेम बाने विच शमियाने तो बाहर आए। एक अलौकिक तेज उन्होंने चेहरियां ते चमक रहा सी। एक अलौकिक तेज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते चेहरे ते नूरों नूर चेहरे ते चमक रहा सी। अखां भर के कोई देख नहीं सी सकता। संगतां विच खुशी की लहर दौड़ गई और इन्हां पंजां नूं गुरुदेव ने 5 प्यारियां की पदवी दे के निवाजिया। एक वड्डे बर्तन विच, पतीले विच शुद्ध जल एकत्रित करके पातशाह ने खंडा चुकया ते 20 आसन ते बैठ के उस जल विच खंडा फिराना शुरू किया। नाल ही 5 बाणियां दा पाठ, जपजी साहिब, जाप साहिब, तो प्रसाद सवैये, बेनती चौपाई ते आनंद साहब। अखां जल विच टिकियां ने। माता साहब कौर जी प्रगट होए। झोली विच पताशे सन, उन्होंने जल विच पताशे मिला दिते और पंजे बाणियां के उच्चारण बाद गुरुदेव ने आप अरदास करके उस अमृत जल के छिट्टे गुरसिखां दे सीस ते अखां विच मूँह विच पाए ते उन्होंने नाम दिता 5 प्यारे। गुरु दे प्यार वाले 5 प्यारे जो गुरु लई अपने शरीर का बलिदान देन नूं तैयार हैं। और एक अलौकिक घटना होर वरती। हुण गुरुदेव उन्हां 5 दे चरनां विच बैठ के झुक के कहन लगे, हे गुरु के प्यार वालिओ, दास नूं भी अमृत की दात बख्शिश करो, जिन्हों असीं खंडे बाटे दा पाहुल करके जानते हाँ। वो अमृत है। पातशाह ने कहा, मैनू भी इस तो वांझा ना रखो। कुछ विचारकों का भावना में आके ऐसी विचार भी है कि भाई दया राम जी जो पहले 5 प्यारे सन, कहने लगे पातशाह असीं ते सीस दे के दात प्राप्त की है, आप की दोगे? पातशाह कहने लगे सीस तो मैं अपने पिता का दे चुका हूँ। कहने लगे पातशाह सिख भी एक सिर देवे तो गुरु भी। उदों पातशाह बड़े विराग च आके बचन किया कि प्यारिओ तुसी बचन कर दिओ ना, एक मैं प्रण लैना, मैं अपना सरबंस कुर्बान कर देंगा। भाव अपने चारों लाल और अपना सीस देश कौम की रक्षा लिए कुर्बान कर देंगा। मैनू भी ये अमृत की दात बख्शिश करो। एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, दाम तो ना दे सकूं भेटा मंजूर करो, सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊँगा। मैं कीमत नहीं दे सकता अमृत की, पर भेंट दे रहा। वादा करना वक्त आएगा मैं अपने सरबंस को कुर्बान कर देंगे।
और गुरु ने संसार जानदा है ए वादा निभाया। दो चमकौर दी घड़ी विच शहीद होए, दो गुरु के बच्चे फतेहगढ़ साहब सरहंद दीवारां विच चिन दिते गए। धर्म नहीं छोड़िया, एक नवी मिसाल कायम की। 7 साल ते 9 साल दे बालक देश धर्म की रक्षा लई अपने धर्म के असूलों ते पैरा देंदे होए अपनी कुर्बानी दे दी। इन्हां पंजां नूं गुरुदेव ने 5 प्यारे नाम दिता ते हुण सब दा नाम बदल के एक जाति, ये वख-वख जातियां तो सन, वख-वख संप्रदायां तो सन, पर गुरुदेव ने एक संप्रदा कर दी। सब दे नामां नाल सिंह जोड़ दिता। सिंह भाव शेर, जो किसे तो डरदा नहीं, कदी हार नहीं मनदा और एक जेतू है। उहदी चाल एक मस्ती है, एक रवानी है, एक एटीट्यूड है, विनर एटीट्यूड। और इन्होंने नाम दिता खालसा। खालसा मतलब जिथे आम भाषा विच खालसे का मतलब है पवित्र शुद्ध, उथे अरबी भाषा विच खालसा शब्द का अर्थ है वो जदाद का टुकड़ा जिस ते कोई टैक्स नहीं, वो राजे की प्रॉपर्टी है। तो पातशाह ने भी कहा है खालसा किसी होर दे अधीन नहीं, अकाल पुरख दे अधीन है। डायरैक्ट कंट्रोल्ड बाय अकाल पुरख वाहिगुरू, एक परमेश्वर दे अधीन है खालसा और किसी अगे नहीं झुकदा, किसे तो कोई आस नहीं रखता, एक तो ही अरदास रखता है, वो है खालसा। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। ये वो खालसा है जो अकाल पुरख की फौज है, जो ना किसी से डरता है और ना किसी को डराता है, ना किसी से डरता है ना किसी को डराता है। खालसा अकाल पुरख की फौज। और इस नाम के बाद सिंह का शब्द साथ जोड़ा और इतिहास में ऐसा आता है कि करीब 25,000 लोगों ने उस दिन अमृत की दात प्राप्त की और एक नई परंपरा जिसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति संप्रदाय का भेद नहीं, और जो हर समय गरीब और कमज़ोर की रक्षा के लिए तैयार बर तैयार है। 5 धार्मिक चिन्ह उनको गुरुदेव ने दिए। एक तो सर के बाल नहीं काटने, भाव शरीर के किसी हिस्से से भी जो रूप परमेश्वर ने दिया है, बाल रोम अपने नहीं बेदबी नहीं करनी, ना केसों की किसी रूप में, जिसे हम बाल कहते हैं सिक्खी में, उनको अदब के साथ केस कहा जाता है। केसों की बेदबी नहीं करनी। मेरे पिता ने अपनी पलक का एक बाल देने से इनकार कर दिया। जिस समय ऑपरेशन करते टाइम ये पलकों का सफाई की जाती थी, उस समय आँख का ऑपरेशन ये टेक्निक्स नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं, मेरी आँख चली जाए पर मैं आँख का बाल नहीं दूंगा। ये परंपराएं हैं, ये सिद्धांत सिक्खी के हैं। शरीर के किसी रोम की बेदबी नहीं करनी, सर पे पगड़ी सजानी है। दूसरा निशानी कृपान धारण करनी है, शस्त्र धारण करना, किसी को डराने के लिए नहीं, आत्मरक्षा के लिए और कमज़ोर की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना। एज ए पीस कीपर, कोई भी किसी धर्म में दखल अंदाजगी नहीं करेगा। खालसा बीच में खड़ा है।
तीसरा, केसों को संवार के रखना है, ऐसा नहीं कि जटाएं बन जाएं। उसकी साफ सफाई के लिए कंघा हर टाइम अपने केसों के साथ रखना है, कंघा। इसका एक अंतरी भाव भी है कि साफ सुथरे रहना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, रोज स्नान करना है, बानी पढ़नी है और बड़े सुचजे ढंग से, सुंदर ढंग से अपने आप को तैयार बर तैयार रखना है, एक शहंशाह की तरह जीना। कंघा, कृपाण, केस, कड़ा, हाथ में लोहे का या स्टील का एक कड़ा जो निशानी है इस बात की। दाएं हाथ में कड़ा धारण करना है ताकि जब भी कोई काम करने लगें तो ऐसा ना कुछ गलत करने लगें। कड़ा गुरु की निशानी है। और पांचवा है कशहरा, द लॉन्ग शॉर्ट्स, एक विशेष तरह का कशहरा जिसमें उस समय में योद्धा कशहरा धारण करते थे युद्ध कला में, ताकि शरीर चुस्त बर चुस्त रहे। ऐसा पहनावा नहीं जो रुकावट बने युद्ध कला के समय पे। तो कशहरा, केश, कड़ा, कृपाण, कंघा और कशहरा, ये 5 ककार जिनको 5 केज के नाम से भी संसार जानता है, ये सिख ने धारण करने हैं। ऐसा उपदेश मुझे याद है। मैं जब अमेरिका में एक जगह यात्रा हवाई जहाज़ में कर रहा था तो एक फायर ऑफिसर मुझे प्लेन में मिला और स्वाभाविक भी उसने पूछ लिया कि आप कौन हो। मैंने बताया मैं गुरु का सिख हूँ। तो बड़े सरकास्टिक वे में उसने एक सवाल किया, आर यू द सेम हु कीप डैगर्स? भाव वो जो कृपाण रखते हैं तुम वही हो? कुछ दुष्प्रचार की वजह से उसके अंदर ये घृणा थी कि शायद ये लोग हर समय अपने पास हथियार रखते हैं किसी के साथ गलत करने के लिए। तो मैंने भी उसी भाषा में उसको जवाब दिया। मैं कहा हाँ, वी आर द सेम हु कीप डैगर्स, बट डू यू नो वाई वी कीप डैगर्स? क्या आपको पता है हम ये कृपाण क्यों रखते हैं? और जब मैंने सारा वृत्तांत सुनाया तो उसका मन भर आया और कहने लगा, काश ये कड़ा जो है संसार का हर व्यक्ति पहने। सच्चाई है, ये बहुत ऊंचे नियम है प्यारी साध संगत। कशहरा इसलिए है 1 मैन वुमन एंड 1 वुमन मैन, एका नारी जति। पराई स्त्री की तरफ आंख उठा के नहीं देखना है, उसमें अपनी माँ को देखना है, अपनी बहन को देखना, अपनी बेटी को देखना और दुष्ट दृष्टि से नहीं देखना। एक स्त्री पत्नी को, और इतना मान प्राप्त है औरत को सिख धर्म में कि गुरु नानक देव जी ने कहा था, उस औरत को आप नीचा कैसे कह सकते हो जो राजाओं को, ऋषियों को जन्म देती है। सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। औरत की बहुत बड़ी महिमा है सिख धर्म में। तो ये पांचों ककार जीवन को संवारने के लिए हैं। तो पीस कीपर है खालसा। जहाँ कहीं जुल्म होगा खालसा बीच में खड़ा है। और ये जाहिर है कि इस देश की आज़ादी के लिए, मुग़लों से टक्कर लेने के लिए सबसे ज़्यादा शहादतें अगर किसी ने दी हैं तो इसी खालसा पंथ ने दी हैं। और आज भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है, अब कोविड के दिनों में जहाँ कोई दूसरे के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था, वहाँ ये खालसा पंथ के सेवादार दूर दूर तक जाकर ऑक्सीजन, दवाइयाँ, लंगर लगातार चला रहे थे। और एक निशानी थी कि जहाँ गुरुद्वारा है वहाँ हर चीज़ मिलेगी। एक समय ऐसा भी था प्यारी साध संगत
कि एक बस के अंदर अगर एक सरदार बैठा है ना तो लोग निडर हो जाते थे, कहते थे नहीं अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, एक गुरु का सिख बैठा है बस के अंदर। और इतिहास गवाह है, जिस समय में अब्दाली गजनी के जो धाड़वी लोग थे, लुटेरे लोग थे, देश को लूटने के लिए आते थे, यही खालसा पंथ के सिपा सलार उनसे अपनी हमारे देश की बहु बेटियां जो वो उठा के गुलाम बना के ले जाते थे, नौजवान बच्चों को ले जाते थे, उनसे छीन के वापस उनके घरों तक बाइज्जत पहुँचाने का काम यही गुरु का खालसा करता आया है। बहुत लंबा इतिहास है कुर्बानियों का, मुग़लों से टक्कर, अंग्रेज़ों से टक्कर। देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन गुरु घर के खालसा फौज का है, इतिहास गवाह है इस बात का। ब्रिटिशर्स हिस्टोरियंस मैकालिफ और मैक्लॉयड लिखते हैं कि अमृत छकने के बाद सिखों का जहां हौसला बुलंद हुआ वहाँ शरीर में बड़ी ज़बरदस्त बदलाव आया। बड़ा हौसला है, अमृत की बहुत बड़ी दात है, ये तो वही जानता है जिसने अमृत चखा है, ये वही जानता है। तो इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह साहब ने खालसा पंथ की साजना की और वचन किया, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटेओ खालसा परमात्म की मौज। ये परमात्म की मौज, उस अकाल पुरख वाहिगुरु की मौज है, खालसा प्रगट हुआ है। और गुरु पातशाह ने हुक्म किया कि मेरे को देखना हो तो 5 त्यार बर त्यार सिखों में मेरा रूप है। और कोई भी फैसला 5 गुरु के सिख लेते थे, गुरु भी उनको मानता था, इतिहास गवाह है। चमकौर की गढ़ी को खाली करने के लिए जब 5 सिखों ने हुक्म किया मिलके इकट्ठे होके कि आप गढ़ी छोड़ के निकल जाओ, तो गुरु साहब ना चाहते हुए भी उनके हुक्म को सर माथे पे रखते हुए वहाँ से चले गए। बहुत बड़ा इतिहास। इस तरह से 1699 की बैसाखी को खालसा पंथ का जन्म हुआ। और सिद्धांत क्या दिया गुरुदेव ने कि जागत जोत जपे निस्बासर, एक बिना मन नैक न आने, पूरन प्रेम प्रतीत सजे व्रत गोर मणि मट भूल न माने। एक जागत जोत, एक आत्म की तरफ ध्यान रखना है, उस परमेश्वर की जोत जो हमारे अंदर जल रही है उसके आगे झुकना है बस। तो ये है खालसा पंथ की महानता, ये है 1699 की बैसाखी की कथा, और ये है उसके पीछे का भाव जो गुरुदेव ने हुक्म किया कि सारे सिखों को हुक्म है कि आप, और जब अपना शरीर त्यागने लगे तो उन्होंने हुक्म कर दिया नांदेड़ के पवित्र स्थान पर जहाँ आज गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर साहब अबचल नगर स्थापित है, हुक्म किया कि आज के बाद कोई देहधारी गुरु नहीं होगा, बल्कि ये जो पावन बानी गुरु ग्रंथ साहब की है, जिसमें 6 गुरुओं की बानी है, 15 अलग अलग जाति संप्रदायों के भक्तों की बानी है, 11 भट्टों की बानी है, 4 गुरसिखों की बानी है, इसी को धन गुरु ग्रंथ साहब के रूप में पूजा जाएगा। और उसके आगे खुद भी मस्तक निभा दिया गुरुदेव ने और हुक्म किया, आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभ को मिलबो चहे खोज शब्द मेले। जो प्रभ को मिलबो चहे खोज शब्द मेले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।